سکتا، ہندوستان کا مسلمان کبھی ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ پتا ہے ہمارے رگوں کے اندر کن کا خون ہے؟ ہمارے رگوں کے اندر صحابہ اکرام کا خون ہے۔ بی بی سمیہ کو پیٹھ سے چیر دیا گیا تھا، بی بی سمیہ کو پیٹھ سے چیر دیا گیا تھا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ حضرت بلال حبشی کو جسم میں سوراخ دیا گیا تھا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ حضرت حسین احمد گنگوہی کو شوٹ وارنٹ ہوا تھا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، ایسا نہ کریں گے، کبھی ایسا نہ کریں گے، مر جائیں گے لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ حضرات گرامی، آج ہمارے سرزمین ممبئی میں ایک ایسی دجال کا پہچان ہو گیا جو اپنے آپ کو بہت بڑا جاننے والا کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں تو کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو بدبخت ہے، بدبخت انسان ہے، عوام میں نفرت پھیلا رہا ہے، عوام میں نفرت پھیلا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھ تو کون ہے۔ میں کہتا ہوں تو ایک حرام کی اولاد ہے، تو ایک حرام کی اولاد ہے۔ تو کون ہے؟ اپنے مذہب کو نہیں جانتا، اپنے مذہب کی کتابوں کو نہیں جانتا، تو آیا ہمارے آقا کے بارے میں گستاخی کرنے کے لیے۔ ایک اخلاق سن لے، ہم مسلمان کبھی رام کی متعلق چریتر پر بات نہیں کی، ہم مسلمان کبھی کرشنا کی چریتر پر بات نہیں کی، ہم مسلمان کبھی گوتم بدھ کے بارے میں چریتر پر بات نہیں کی۔ تو کون ہے مصطفیٰ کے بارے میں بھگتے ہو؟ تجھے کیا حق ہے ہمارے دین پر انگلی اٹھانے کے لیے؟ جب ہم کسی دین اور دھرم پر بات نہیں کرتے، اے اخلاق سن لے، مگر اتنا جان لے، میرے نبی کی عزت پر پیر چڑھ نہ کر۔ اگر نبی کی عزت پر انگلی اٹھاؤ گے تو ہم بھی جواب دیں گے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان بلڈوزر سے ڈر جاتا ہے، ہتھیار سے ڈر جاتا ہے۔ تو اخلاق سن لے، بہت سارے ایسا جن ہے جو ہمارے بچے کو قتل کر دیا گیا۔ یہ تو چنگیز خان بھی کر کے دیکھ چکا ہے، یہ تو ہلاکو بھی کر کے دیکھ چکا ہے، یہ تو یزید بھی کر کے دیکھ چکا ہے۔ اس ٹائم اگر اسلام نہیں مٹا تھا تو آج بھی اسلام نہیں مٹے گا۔ اسلام تھا اور اسلام ہے اور اسلام رہے گا۔ حضرات گرامی، آج میں بہت ہی تکلف کے ساتھ یہ بات کہنے جا رہا ہوں۔ ہمارے سرزمین ممبئی میں ایک ایسی دجال کا پہچان ہو گیا، ایک ایسی بدترین شخصیت کا معلوم ہوا۔ نام رام گیری مہاراج ہے۔ اس شیطان نے ہمارے آقا کے بارے میں گستاخی کی۔ مسلمانوں جگ جاؤ، اڑ جاؤ، نیند سے بیدار ہو جاؤ۔
उस बदबख्त को ये नहीं मालूम कि मुसलमानों का ईमान आका मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस बदबख्त को ये नहीं मालूम कि हमारे आका ने हमें सिखाया हुब्बुल वतन मिनल ईमान। तुम जिस वतन में रहता हो उस वतन से तुम मोहब्बत करो। हुब्बुल वतन मिनल ईमान, जिस वतन में हम रहते हैं उस वतन को हम मोहब्बत करते हैं। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। प्यारे मुसलमान, कसम खुदा की मुसलमानों, ऐ टकला तू सुन ले, अगर तू हमारे ईमान के बारे में कुछ कहना है तो पहले सोच लेना तेरा क्या हालत होगा। इस सरजमीन में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा, हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। सब खुदा की मुसलमानों, इससे पहले भी बहुत जाहिलों ने आया हमारे आका के बारे में गुस्ताखी करने की कोशिश करी थी, हमारे आका के बारे में गुस्ताखी करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका अंजाम क्या हुआ? कसम खुदा की मुसलमानों, उनका अंजाम क्या हुआ? या तो वो तौबा करके मुसलमान हो गया, या तो वो तौबा करके हिदायत पा लिया, या तो निशान इबरात बन गया, या तो इस रुए जमीन से निस्ते नाबूद हो गया। कसम खुदा के मुसलमानों, इस धरती में जो भी आए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी गुस्ताखी करे इस रुए जमीन से निस्ते नाबूद हो गया। मैं होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर दाखिला साहब आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रामगिरी को गिरफ्तार करने का हुक्म दीजिए, गिरफ्तार करने का ऑर्डर दीजिए। वज़ीर दाखिला साहब, अभी भी वक्त है, नहीं तो हिंदुस्तान में बुरा हाल हो जाएगा। दाखिला साहब, अगर आपका ये सपना है कि हिंदुस्तान का मुसलमानों का धर्म बदल देंगे जबरदस्ती, तो ये आपका गलत सोच है कि हिंदुस्तान का मुसलमान कभी धर्म नहीं बदल सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान कभी ईमान का सौदा नहीं कर सकता। पता है हमारे रगों के अंदर इनका खून है, हमारे रगों के अंदर सहाबा इकराम का खून है। बीबी सुमैया को पीठ से चीर दिया गया था, बीबी सुमैया को पीठ से चीर दिया गया था, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया था। हजरत बिलाल हबशी को जिस्म में सुराख किया गया था, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया था। हजरत हुसैन अहमद गंगोही को शूट वारंट हुआ था, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया था। कसम खुदा की मुसलमानों, ऐसा ना करेंगे, कभी ऐसा ना करेंगे, मर जाएंगे लेकिन ईमान का सौदा नहीं करेंगे। हज़रात गिरामी, आज भी अब्दुल्ला 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से ये तर्जमानी करके तुम्हारे कान तक ये पहुंचाना चाहता है। होम मिनिस्टर साहब, अगर ज़मीर जिंदा है तो तारीख की रोशनी में कहना चाहता हूँ कि 30 करोड़ मुसलमानों की ईमान को छूना तो दूर की बात, तुम जलकर राख हो जाओगे, तुम जलकर भस्म हो जाओगे। हिटलर आया तो मिट गया, नमरूद आया तो मिट गया, फिरौन आया तो मिट गया, जो भी
अगर मुसलमान शराफत का रास्ता छोड़ दिया, मुसलमानों के अंदर आज भी वही गर्मी है। अगर मुसलमान लड़ने की शुरू की तो तुम्हें पार्लियामेंट के अंदर बैठने की कुर्सी नसीब नहीं होगी, तुम्हें रास्ता नजर नहीं आएगा। हम आए से कहां से जाएंगे कहां तक, क्यों? इसलिए कि तुमने हिंदुस्तान की संविधान को बदलने की बात की। ऐ गद्दारों, सुन लो, मुसलमान वो होता है जो अपने अज़ा से मोहब्बत करता है। मुसलमान वो होता है जो अपने इस्लाम से मोहब्बत करता है। मुसलमान वो होता है जो अपने कुरान से मोहब्बत करता है। मुसलमान वो होता है जो अपने रसूल से मोहब्बत करता है। मुसलमान वो होता है जो अपने हिंदुस्तान से भी मोहब्बत करता है। कसम खुदा की मुसलमानों, आज कोई भोग रहे हैं मेरे नबी की इज्जत पर, तो कोई मुसलमान कहता है कि ये तो पागल है, ये तो पागल है, उसको छोड़ दो, उसका क्या मुंह लगना है। नहीं मेरे अजीजों, हमारे अकीदे ये है कि अगर कोई पागल भी ये कहे हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे, हमारी जिम्मेदारी है कि उसका मुंह बंद करे। अगरचे उसका अकल नहीं है, अगरचे वो दीवाना है, अगरचे वो मजनून है। शरीयत में ये हुक्म नहीं देता कि हमारे आका के ऊपर कोई गुस्ताखी करे, नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे कि हम चुपचाप सुनते जाए। ये शरीयत में कोई हुक्म नहीं देता। तो शरीयत का हुक्म है कि उसकी जबान पर रोक लगाओ। कसम खुदा की मुसलमानों, आज बहुत तकलीफ होती है या रब, कोई भी हुजूर के खिलाफ भोग देता है, हमारे कौम देश पर लगती रहती है, नचने लगते रहते हैं। वो कितना रामगिरी महाराज हुजूर के खिलाफ भोगता है, लेकिन हमारे मुसलमान कितने ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसमें हमारे कौम का नौजवान नाचने वाले पर पैसा लुटा रहा है। अफसोस, तुझे हुजूर से प्यार नहीं है, तू तो वो था नबी की इज्जत पर अगर कोई गुस्ताखी करे तो तू अपने जान बाजी लगा देता था। आज मुसलमान नौजवान नाचने में डूबा रहता है, हम जानते हैं हमारे हाथ उस तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन इतना तो कर सकता है, अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। कोई कोने में बैठ के भूखने वाले, अगर तू माँ की दूध पिया है, अगर बात में सच्चे हैं तो बाहर निकल, चिरागे पे आ। अगर तेरे माँ ने दूध पिलाया है, मैदाने जंग में आके तो देख कौन सच्चे हैं, मालूम हो जाएगा। कसम खुदा की मुसलमानों, ये जमीन में या तो वो बाकी रहेगा या तो मुस्तफा का आशिक बाकी रहेगा। ऐ मुस्तफा का आशिक, कुछ तो करो, जगो।
कब जगोगे? साथे ग्राम में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुसलमानों तक पहुंचा दीजिए। मुसलमानों की ईमान को मजबूत करने का वक्त आ गया, मुत्ताहिद होने का वक्त आ गया। मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाकर बात करें। इस गुनाहगार के लिए दुआ करिए, इंशाअल्लाह हम मुसलमान सब मुत्ताहिद हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।